So here is the PDF, and I'm going to ask in particular India UK Free Trade Agreement के main points जो हैं please mentioned in the PDF. ठीक है, तो देखते हैं इसकी आवाज़ आ रही है. The India-UK Free Trade Agreement, FTA, as described in the Vision IAS May 2025 Current Affairs PDF, includes several key features. 1. Zero duty market access. 99% of Indian export to UK will get zero duty access, covering nearly 100% of the trade value. India will cut tariffs on 90% of British products over time. Within a decade, 85% will become tariff-free. 2. Mobility of Indian professionals. Eases entry for categories like contractual service suppliers, business visitors, independent professionals, e.g. yoga instructors, intra-corporate transferees and their families, with work rights. 3. UK services access. UK made ambitious commitments for Indian service sectors, IT, finance, education, etc. 4. Government procurement. UK companies can now bid for Indian government procurement projects, central and some state-owned entities. 5. Double Contributions Convention, CC, a social security agreement to avoid double social security payments for temporary workers up to 3 years. Safeguards and considerations. Sensitive sectors, items like dairy and plastic products are protected by being gradual tariff reduction. India's tariff cuts are phased to give domestic industries time to adjust. Template for future FTAs. The India-UK deal is seen as a model for future trade negotiations, including with the EU. Let me know if you'd like a visual summary or a deeper dive into any part, like service sectors or tariff schedules. ठीक है, तो अब ये सुनने के बाद हम इसको एक बार फिर से बोल दे रहे हैं. देखो, थोड़ा बहुत तो यहाँ से समझ में आ गया है. अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो इंडिया एंड द यूके announced the conclusion of a free trade agreement after 3 years of formal talks. It will consist of 27 chapters. ठीक है, वो सब तो. Double contributions convention क्या है? So DCC is a type of social security agreement जिसके तहत it will support the business and trade by ensuring that employees moving between both countries and their employers will only be liable to pay the social security contributions in one country at a time. ठीक है, so जो यहाँ पे बिजनेस और ट्रेड ओनर्स को बेसिकली बेनिफिट करेगा by ensuring that employees moving between both the countries will only be liable to pay social security contributions in one country at a given time. It will include employees temporarily working in the other country for up to 3 years. मतलब ये जो exemption है ये सिर्फ 3 years के लिए मिलेगा. ठीक है, और it will not affect individuals' rights to access benefits from the country in which they pay social security contributions or the requirement to pay the UK immigration health surcharge. वो सब छोड़ो. मेन चीज़ ये है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, जिसमें सिर्फ एक ही कंट्री में जो एम्प्लॉई है उसको अपना सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. बट दिस एग्जाम्पशन विल रिमेन फॉर टेम्पररी वर्कर्स वर्किंग अप टू 3 years. ठीक है, और क्या है? ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस है. दैट 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स विल एन्जॉय ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस टू द UK मार्केट. एंड सिमिलरली India will cut. Similarly, within a decade, 85% of the British products will gain access to Indian market, duty free और tariff free. ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हमको होगा. ठीक है, now eases mobility of Indian professionals. It includes contractual service suppliers. देखो कुछ श्रेणियाँ बना दी गई हैं, categories, business visitors, contractual service suppliers, investors, intra corporate transferees, and their partners and dependent children with right to work. Their partners as well as dependent children with right to work and independent professionals like yoga instructors etc. को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. ठीक है, इन सभी के लिए मोबिलिटी को आसान कर दिया गया है बिटवीन इंडिया एंड द यूके. फिर से बता दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, बिजनेस विजिटर्स, इन्वेस्टर्स, independent workers like yoga instructors, their partners and dependent ones, and even the partners and dependent children का भी right to work रहेगा, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज एक्सेट्रा. ठीक है, इन सभी के लिए मोबिलिटी आसान कर दी गई है. देन एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम यूके इन स्पेशली इन द इंडियन सर्विसेज सच एज IT और ITES में और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इंडिया के और प्रोफेशनल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा यूके का. और फर्दर इंडिया मतलब UK businesses will be able to compete for a wide variety of goods, services and construction procurements for the majority of central government entities and the state-owned enterprises. इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा है कि UK companies can now bid. UK
वहाँ की कंपनीज कैन नाउ बिड फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट ओन्ड प्रोजेक्ट्स सभी में। यूके कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज कैन नाउ बिड फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बशर्ते इंडिया को भी अलाउ करना पड़ेगा, ठीक। नाउ allowed participation of UK businesses in procurement. So UK businesses will be able to compete not just for government procurement in terms of projects, but also for a wide variety of goods and services and construction procurements for the majority of central government entities and state-owned enterprises, ठीक है। बाकी भी केवल इंफ्रा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि अदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह में यूके कंपनीज कैन नाउ बिड टू एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस हियर। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही सब है। नाउ FTAs आर अरेंजमेंट्स बिटवीन 2 or more countries or trading blocs that agree to reduce or eliminate customs, tariffs and non-tariff barriers on substantial trade. Then it covers trade in goods and trade in services and also areas like intellectual property rights, ठीक है, तीनों में से होता है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होता है? इट इज़ अ प्रीकर्सर टू एन FTA and other trade agreements. FTAs act as an exception to the most favored nation principle और the World Trade Organization. So free trade agreement एक तरह से bypass कर देता है इस MFN concept of the WTO को। India has signed 13 FTAs in the last 5 years with its trading partners like Mauritius, UAE, Australia, etc. ये एक SBI की रिपोर्ट है, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, India has signed 13 FTAs in the last 5 years, ठीक है, with various countries like Mauritius, UAE as well as Australia। तो ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वैसे देखो तो हायरार्की ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो हायरार्की अगर देखो यहाँ पे तो एक होता है PTA, दैट इज़ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। वो क्या होता है? यहाँ पे रिड्यूस्ड टैरिफ्स ऑन अग्रीड नंबर ऑफ गुड्स, मतलब एक गुड पर आइटम के हिसाब से या पर सर्विस टाइप के हिसाब से रिडक्शन इन टैरिफ किया जाता है। सो दैट इज़ अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देन वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद वी हैव SECA एंड SEPA, दैट इज़ एडिशनल एग्रीमेंट ऑन एरियाज लाइक रेगुलेटरी इशूज़, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो वहाँ पे रेगुलेटरी इश्यूज़ को भी ईज़ किया जाता है, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह के लिए भी अलग से प्रोविजंस बनाए जाते हैं और सर्विसेज में भी इन्वेस्टमेंट का प्रावधान रखा जाता है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक SECA दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कस्टम यूनियन विच इज़ मोर डीपर इन द सेंस दैट more seamless trade can happen here in a custom union. Zero duty trade among countries and common tariffs against rest of the world. तो यहाँ पे कस्टम यूनियन में कई देश आ जाते हैं और जो देश कस्टम यूनियन का हिस्सा होते हैं वहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी ट्रेड एंजॉय करते हैं और ये यूनियन बाहरी दुनिया को एक एक्सटर्नल यूनिट की तरह ट्रीट करता है when it comes to applying tariffs against the rest of the world, ठीक है। फिर कॉमन मार्केट की बात करें तो ये और बड़ा हो जाता है, कॉमन यूनियन से थोड़ा सा और बड़ा, और भी ज़्यादा देश आ जाते हैं इसमें। फ्री मूवमेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा। और सबसे बड़ा होता है इकोनॉमिक यूनियन, दैट इज़ द डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूशन भी हो जाता है सभी के लिए, जैसे कि एक सेंट्रल बैंक हो गया पूरे यूरोप के लिए, जबकि यूरोप में कई कंट्रीज़ होते हैं। तो सच अ टाइप ऑफ सिस्टम इज़ कवर्ड अंडर इकोनॉमिक यूनियन। सो ये सबसे डीपेस्ट होता है। तो अगर इनको ऑर्डर में सहेजा जाए तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद आता है FTA दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द गुड्स। उसके बाद SEPA और SECA आता है। उसके बाद कस्टम्स यूनियन आता है जिसमें कुछ देश होते हैं। फिर कॉमन मार्केट आता है, उसमें थोड़े से और देश होते हैं और लेबर और कैपिटल का हार्मोनाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं। और सबसे डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा जहाँ पे कॉमन इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं सभी के लिए, तो वो इकोनॉमिक यूनियन होता है। नाउ इंडिया ने कितने किए थे? 13 FTAs इन द लास्ट 5 years, ओके। नाउ इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद FTAs, ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू इट्स FTA पार्टनर्स इंक्रीज्ड बाय 31% वाइल इट्स इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड बाय 82%। तो ये एक मतलब अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो FTA में हमारा उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम दूसरे का फ़ायदा करा बैठे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। देन लो यूटिलाइजेशन
India's FTA utilization remains very low at around 25%, while utilization for developed countries is about 70 to 80%. तो जो दूसरी पार्टी होती है सच एज द डेवलप्ड कंट्री जिसके साथ हम FTA करते हैं उसका 70 से 80% यूटिलाइजेशन हो जाता है, जबकि हम सिर्फ 25% ही यूटिलाइज़ कर पाते हैं। ठीक है, अगर इसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की नज़र से देखें तो हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 31% बढ़ता है जब भी हम FTA साइन करते हैं ऑन एन एवरेज, जबकि हमारा इम्पोर्ट जो है वो 82% से बढ़ जाता है। तो ये दो अच्छे पॉइंट्स हैं। इवन ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस अकर्स इन FTAs। और फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें, ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस शोज दैट बिटवीन 2020 and 24 ओवर 26,000 न्यू रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैव बीन ग्लोबली इम्पोज्ड। तो ये क्या पॉइंट है? एनीवेज ठीक है। हाँ, देयर आर अदर पोटेंशियल गेन्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो FTAs में ये भी संभव है। वैल्यू एडेड लिंकेजेस, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, improved access to greater variety of intermediate goods and services. So how India-UK FTA can help shape future FTAs? So India अब ये एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा by other countries of the European Union. So India-European Union negotiations have been in process since 2007. Safeguard of sensitive sectors like dairy products etc. are on the exclusion list. Plastic को भी sensitive agri products जिससे कि कुछ खतरा हो सकता है वहाँ के एग्री हेल्थ को, तो उसको इससे बाहर रखा गया है। एक एक्सक्लूजन लिस्ट बना दी गई है। ऑल्सो सेंसिटिव इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक प्लास्टिक्स एक्सेट्रा हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द एक्सक्लूजन लिस्ट, दस प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज़ किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से कर दिया जाएगा। जो इंडिया UK FTA हुआ है, द फॉर्मर अग्री टू कट, मतलब इंडिया अग्री टू कट और रिमूव ड्यूटीज़ ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड विच एंश्योर्स एडिक्वेट टाइम फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू एडजस्ट टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। तो ब्रिटिश गुड्स तो आएगा, तो एकाएक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। यही बात है कि धीरे धीरे ड्यूटीज़ कट की जाएंगी ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एकदम से शॉक ना लगे एंड दे आर एबल टू अडेप्ट टू द न्यू कॉम्पीटिंग एनवायरनमेंट्स ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। Then emphasis on mutual benefits. Example, UK car manufacturers will benefit from a quota that reduces tariffs from over 100% to 10%. ये एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, कि UK ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 100% से 10% ही अब रह जाएगा जो कि उनको टैरिफ पे करना पड़ता था अपनी गाड़ियाँ इंडिया में बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर CPEC का हम ये बाद में देखते हैं।